कि घर की इस बार मुकम्मल मैं तलाशी लूंगा, गम छुपाकर मेरे माँ बाप कहाँ रुकते हैं। As the Prophet, peace be upon him, said, a child who looks at his parents with kindness and Absolutely. Prophet Muhammad, peace be upon him, also said, a parent is the best of all teachers. Which is the best deed? सबसे अच्छा काम क्या है? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, praying on time. वह अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जब घर से निकलती हूँ मेरी माँ सजदे में रहती है। واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We welcome you all here at Danish Public High School, Faksu. Today we gather here to discuss a topic that is close to our hearts and homes: obedience to parents. This topic is crucial because it affects our relationship, our values, and our very own well-being. Obedience to parents is a virtue that has been emphasized across cultures and religions. Our parents are our first teachers, our role models, and our guiding lights. They provide for us, care for us, and sacrifice for us. In return, we are expected to obey them, respect them, and show gratitude towards them. In this discussion, we will explore the importance of obedience to parents. Let us begin this discussion with an open heart and mind, seeking guidance and wisdom from each other. May Allah bless our discussion and guide us to the right path. Let's move to the first student, Alia. Our parents care for us and want the best for us. We should obey them as a sign of gratitude and respect. As Prophet Muhammad, peace be upon him, said, paradise lies at the feet of your mother. Obedience shows we value their guidance and love. By obeying, we build a strong relationship and learn valuable life skills like discipline and responsibility. Obedience to parents is also a fundamental aspect of teaching in every religion. Buddha says the greatest debt one can owe is to one's parents. मेरा पसंदीदा शेर है कि घर की इस बार मुकम्मल मैं तलाशी लूंगा, कि घर की इस बार मुकम्मल मैं तलाशी लूंगा, गम छुपाकर मेरे माँ बाप कहाँ रुकते हैं। हमारे वालिदैन कितनी तकलीफें उठाते हैं, कितनी मुसीबत उठाते हैं, लेकिन हमें उनकी हवा तक नहीं लगने देते हैं। हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, हर वो चीज़ सामने रखते हैं जिसकी हमने ख्वाहिश की होती है। अगर हमारे वालिदैन हमारे लिए इतना करते हैं तो हमें भी चाहिए उनकी इज्जत करनी चाहिए और उनकी फरमाबरदारी करनी चाहिए। Parents provide for our needs and protect us from harm. We should obey them to show appreciation and follow their rules for our own good. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ा में और अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में। फरमाबरदारी खुद पर काबू पाने और बेहतर इंतखाब में हमारी मदद करती है। हमारे वालिदैन चाहते हैं कि हम कामयाब हो और खुश रहें, इसलिए हमें उनकी हर हिदायत पर अमल करना चाहिए। Obedience is a sign of love and respect. When we obey, we demonstrate our commitment to our family and values. As the Prophet, peace be upon him, said, a child who looks at his parents with kindness and respect, Allah will forgive him his sins and grant him a place in paradise. वालिदैन की फरमाबरदारी खानदानी रिश्तों को मजबूत करती है और घरेलू माहौल को हमाहंग करती है। जब हम अपने वालिदैन की इताअत करते हैं तो हम एक पुरअमन और मोहब्बत भरे माहौल में अपना हिस्सा डालते हैं, जहाँ हर कोई काबिल कद्र और एहतराम महसूस करता है। Obedience to parents ensures our safety and well-being. Their guidance helps us avoid harmful situations and make wise decisions. जैसा कि आलिया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान की, ये जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। ये हदीस अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत, एहतराम और फरमाबरदारी के साथ पेश आने को वाज़ेह करती है। वालिदैन की इताअत हर मजहब का बुनियादी पहलू है। हमारे वालिदैन हमारे अव्वलीन उस्ताद हैं जो हमें सही रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हैं।
By obeying them, we demonstrate gratitude for their efforts and show that we value their wisdom. Absolutely. Prophet Muhammad, peace be upon him, also said, "A parent is the best of all teachers. Our parents teach us essential life skills, moral values, and religious practices. By obeying them, we learn discipline, responsibility, and compassion." मैं एक हदीस बयान करना चाहूँगी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, Which is the best deed? सबसे अच्छा काम क्या है? तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, Praying on time, वक्त पर इबादत करना। कहा फिर फरमाया, Be good to the parents, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। यानी नमाज के बाद अगर बेहतरीन काम इस हदीस में है तो अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। एक शख्स अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और कहा, मैंने अपनी माँ को बहुत दूर से अपने कंधों पर बिठा कर लाया और अपने कंधों पर ही 7 हज करवाए। क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा किया? तो अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हरगिज नहीं, अभी तो उस बात का भी हक अदा नहीं हुआ है जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें पेट में रखकर एक काम किया। जैसा कि मैमूना ने हदीस बयान की, इससे सुनकर मुझे एक शेर याद है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ नहीं होगा। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जब घर से निकलती हूँ मेरी माँ सजदे में होती है। सिर्फ माँ ही नहीं, बाप भी माँ से कम नहीं है। मुझको छाँव में रखा और खुद भी वो जलता रहा। मुझको छाँव में रखा और खुद भी वो जलता रहा। मैंने देखा एक फरिश्ता बाप की परछाई में। हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या क्या करते हैं, कितनी तकलीफें उठाते हैं, हमें अपने साए के नीचे रखते हैं। जो चीज़ हम मांगते हैं वो ला कर देते हैं। जैसे कि फरिश्ता अल्लाह ताला के हुक्म के लिए हमेशा तैयार रहता है, इसी तरह बाप एक ऐसा फरिश्ता है जो अपने औलाद की कुर्बानी के लिए हमेशा तैयार है। वालिदैन अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। वालिदैन जिंदगी में आने वाली तमाम मुश्किलातों को आसान करने में मदद करती है और वो हमारे हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। हमारे वालिदैन अपनी ज़रूरतों को ख़त्म करके अपनी औलाद की खुशी को पूरा करते हैं। बेशक वालिदैन अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, इनका कोई नीमत बदल नहीं है। वालिदैन हमारी जिंदगी में आने वाली तमाम मुश्किलातों को आसान बना देते हैं। माँ बच्चे को जिंदगी में लाने के लिए बहुत तकलीफें बर्दाश्त करती है और बाप भूख की फिक्र मिटाने के लिए मेहनत करता है। वालिदैन अपनी ज़रूरतों को ख़त्म करके अपने औलाद की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। The messenger of Allah, peace be upon him, and his family said, One who follows the order of Allah with regard to obeying parents shall have 2 doors opened up for him. And if there happens to be only one door of paradise opened up for him. So we, on behalf of our school, through this pious discussion, want to convey the message that it's our parents who truly love us and make countless sacrifices for us. इसलिए हमें अपने माँ बाप की इज्जत, एहतराम और फरमाबरदारी करनी चाहिए। पहले हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, इसी तरह हम अपनी सोसाइटी को बेहतर कर सकते हैं।